गे सानू रा ससुरे ओहरे हरवा चाउरा लेखे जय भागे नहीं हरवा मांगे गे सानू रा ससुरे रे कोलकाता का सबसे अनोखा बेटा, जिसने कोलकाता को सिनेमाई पर्दे पर ज्यों का त्यों उतारा। सिनेमाई पर्दे के इस जादूगर को प्यार से लोग माणिकदा बुलाते हैं। Manikda's, Mr. Ray's working style, I think it was totally different from the others. Ray is a real wonder, the man who knew too much. For me, Satyajit Ray was the most inspirational figure. Akira Kurosawa also given a tribute to Ray, that Ray is also like a huge banyan tree for Indian cinema. Indian cinema can be seen with one watershed, before Satyajit Ray and after Satyajit Ray. Ray's influence on Indian cinema was very great. My father was a very great friend of three directors, Satyajit Ray, Federico Fellini in Italy, Mr. Raj Kapoor, for whom he had written a lot of films. Of course, when I was offered one of these three directors, I mean, there was a chance of working with one of these three directors, and I chose Ray. I worked in 5 films with him. Each film was a new learning experience. It started with Gopi Gayan Bagabayan, Pratidwandi, Aranyar Din Ratri, Seema Baddho, and then Oshani Shonket. That was the last film I did with Mr. Ray. Satyajit Ray Archive and his family requested me to make a film. And that was also a very interesting experience for me, because the first time they opened up the Ray's study to me and I had the access to all his script books, notebooks. It's basically, a film is a journey through his notebooks. The way I was impacted by him was because when I wanted to make films, I was thinking, how am I going to express myself in the cinema? But it is when I saw his Pathe Panchali, it was like an enlightenment, as it were. Suddenly I could see that, it was possible to make films that were totally your own personal expression. I went to meet him when he was making Mahanagar. I met him and he invited me to his home and we had dinner together and so on. Then after that, there was a constant contact with him. And ever since I started making films, as long as he was living, the first screening of any of my feature films used to be to show him the film. Ray had a certain kind of sensibility. And I think it was by far the best film sensibility that we have created in our country. हालांकि रे की मुख्य पहचान अपू ट्रिलॉजी की है। 1955 में पाथेर पांचाली से उन्होंने बंगाल के ग्राम्य जीवन को पर्दे पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की। वो अपू त्रय के अतिरिक्त जलसाघर, देवी, 3 कन्या जैसी फिल्मों के ग्राम्य जीवन से होते हुए धीरे धीरे कोलकाता शहर तक आते हैं। यहाँ महानगर, चारुलता, कापुरुष ओ महापुरुष, नायक और चिड़िया खाना जैसी महानगरीय जीवन की फिल्में बनाते हैं। इसके बाद उनकी सिने यात्रा में वो अहम मोड़ आता है जो उन्हें पारंपरिक कोलकाता से मुक्त करता है। महानगरीय जीवन की घुटन से बाहर जाने की तरफ उनकी रचना यात्रा चलती है और वे 1969 तक आते आते अरण्येर दिन रात्रि का निर्माण करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये सत्यजीत रे का महानगर से मोहभंग था? क्या शहरी जीवन के कोलाहल और उसकी जटिलताओं से दूर ये एक यात्रा है? अरण्येर दिन रात्रि को लेकर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये फिल्म रे पर पश्चिमी जीवन शैली में उस समय सामने आ रहे अस्तित्ववादी दर्शन का परिणाम थी,
उस दौर में जॉन पॉल सार्त्र और अल्बेर कामू जैसे साहित्यकारों का प्रभाव पूरी दुनिया के रचनाकारों पर था। ऐसा कथा साहित्य लगातार सामने आ रहा था, जिससे लोग शहरों के जीवन से ऊबकर उससे दूर भाग रहे थे। रे की फिल्मोग्राफी में अरण्येर दिन रात्रि इसलिए भी अहम मुकाम रखती है क्योंकि इसमें किरदारों का सीधे सीधे अपने वर्तमान से संबंध है, किसी ऐतिहासिक अतीत से नहीं। इस फिल्म में रे के किरदार अपने अतीत की नहीं बल्कि वर्तमान की उपज हैं। ऐसा वर्तमान जिससे वे कतई खुश नहीं हैं। वे अपने नाखुश वर्तमान की संतानें हैं। इस वर्तमान का उनके जीवन से, काम से, तत्कालीन समाज और राजनीतिक परिदृश्य से सीधा संबंध है। वास्तव में ये फिल्म हमसे माणिक दा के व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन की पहचान कराती है। ये कहने में संकोच नहीं है कि अगर अपुत्रई उनके करियर की शुरुआत है तो अरण्येर दिन रात्रि से वो अपने करियर की दूसरी त्रयी का निर्माण शुरू करते हैं, जो इस फिल्म के बाद 1970 में प्रतिद्वंदी और 1971 में आई सीमाबद्ध के साथ पूरी होती है। हालांकि रे की फिल्मों के कई भारतीय विद्वान इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन पश्चिम के अनेक फिल्म दिग्गज इन 3 फिल्मों को रे की कोलकाता त्रयी नाम देते हैं। कोलकाता त्रयी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अरण्येर दिन रात्रि में जहां 4 युवक परिस्थितियों से नाराज, निराश और हताश एक सप्ताहांत में महानगर से बाहर जाते हैं, वहीं प्रतिद्वंदी में सत्यजीत रे कोलकाता में लौट कर आते हैं, जिसमें नौकरी की तलाश करता एक युवक अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध मोर्चा खोलता है। जबकि तीसरी फिल्म सीमाबद्ध कोलकाता की एक बड़ी फर्म में नौकरी पेशा नायक के साथ अत्याधुनिक होते महानगर, तेजी से उभरते कॉर्पोरेट कल्चर, लालच और करियर की चूहा दौड़ को हमारे सामने लाती है। इस तरह की पहली फिल्म होने के नाते अरण्येर दिन रात्रि का महत्व अलग ही है। लेकिन ये जानना रोचक होगा कि कलकत्ता त्रयी के पूरे होने के बाद 1972 में डेनिश फिल्म मेकर क्रिश्चियन ब्राड थॉमसन को दिए एक इंटरव्यू में माणिक दा ये कहकर चौंका देते हैं कि डेज एंड नाइट इन द फॉरेस्ट wasn't understood in India. They thought it very frivolous because of its surface, but they completely missed the implications of the structure, which I think makes it one of my best pictures. It's a complex film with 7 characters and its final form very satisfying to me. क्या अरण्येर दिन रात्रि सचमुच जटिल फिल्म है? क्या ये फिल्म रे की अकेली ऐसी फिल्म थी जिसे भारत में नहीं समझा गया, या उनकी और फिल्मों के साथ भी ऐसा हुआ? सबसे पहले खुद रे के शब्दों में जानते हैं कि आखिर उनके लिए अरण्येर दिन रात्रि क्या है। वो कहते हैं, इट्स रादर अ फिल्म अबाउट रिलेशनशिप्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, लाइक अ काइंड ऑफ फ्यूग. People in India kept saying, what is it about? Where is the story, the theme? And the film is about so many things. That's the trouble. People want just one thing, which they can hold in their hands. I made the film primarily because I was fascinated by this aspect of people being taken out of their normal surroundings and the way their characters emerge in an unfamiliar setting, away from their daily routine. पाथेर पांचाली से अपनी रचना यात्रा शुरू करने वाले माणिक दा ने अपनी जीवन यात्रा में 28 फीचर फिल्में बनाई, जिसमें अरण्येर दिन रात्रि 15वीं फिल्म है। उनके मिड ऑफ करियर में बनी ये फिल्म उनकी पिछली फिल्मों से एकदम अलग है। You see, because Satyajit Ray had several phases. You first had the trilogy, starting with Pather Panchali and Uparajito and Upur Sanchar. That was one set. Then you had others. Then you had Charulata and so on. You had those, and then you had the contemporary novels like Mahanagar, etc. Aranya Din Rati comes somewhere in between there. So it was very different from the kind of films that he had made until then or even afterwards. And Ray himself, who has been a person who recorded events largely in the city of Kolkata, see, most of his films are very urban stories.
And even his earliest films, you are really, Calcutta is the central part of it. Now, this film is very different from all of them. But this is a film that is set entirely in a forest. And it's a forest which is like none other. It is a forest of Jharkhand. It's a part of the Chotanagpur Plateau. And you have a large tribal community there, which is all wonderful because you hear a lot of their singing and songs, etc. in the film as background sounds. So, you see, in his own filmography, it's a very unusual film. Well, Ray made Arunuddin Ratri just after Gupiga and Bagabayan. Gupiga and Bagabayan was a heavy film. It took almost 2 years to complete. It has so many songs, music, sets. So it was a very hard work for Ray. And Ray even told me personally that I wanted to make something little light, in lighter vein after Gupiga and Bagabayan. Also very interesting film, of course. But he wanted a break because he thought, let me make a film. It's a kind of a road movie about a journey. So that's how he selected this story of Sunil Ganguly. Satyajit Ray's Arunuddin Ratri was a film of the modern age which dealt with the problems of the youth. He had another kind of form for it. The story of Arunuddin Ratri, he had patterned on a kind of Mozart rondo, which he himself told me. His inspiration for that film was actually musical. It came from a piece of music, and that piece of music came from Mozart. You see, so it's a very interesting, in that sense, Arunuddin Ratri becomes a much more interesting film. So I think it's a very important film in Ray's film career. And a lot of people liked the film, some didn't like the film. Some said, Ray didn't have insight to look into the forest. Some said it's an extraordinary film. But in my opinion, I think it's very well made and very well structured film. I would like to mention here has been a great favorite film in the UK and in France. I'm not talking about the other places, but these two places have monopolized Arunuddin Ratri. महान फ्रेंच फिल्म निर्देशक जॉन रेनवा से प्रभावित रे के बारे में लोग बताते हैं कि ये फिल्म रेनवा की ही 1936 में बनी और डे इन द कंट्री से प्रभावित है. Well, Satyajit Ray got inspired from John Renoir, and he was very lucky that he met Renoir while he was shooting in Calcutta and surrounding villages. And Ray himself said that, even in my film I use that track, that Renoir first opened my eyes, that look at your own country. Because Ray's original plan was to make an Indian version of Prisoner of Zenda. That was his first plan about his first film. But perhaps Renoir's advice helped him a lot. That look at your own village, look at your own soil, and you will find elements. So you collect the elements, but do not use too many elements. Concentrate on a particular element and make a film. And that was one of the reasons I believe Ray took up Pather Panchali. Arunuddin Ratri was a very important film, even though at that time the critics sort of did not write very highly of the film. It's only later that it really got recognized. Because here was a film from suburban to rural, these young executives going out on a trip into a rural area, into the heart of the Santals for a picnic, and how the rural backdrop exposes them out into the open. That was Arunuddin Ratri. Remarkable film according to me. माणिक दा की अरण्येर दिन रात्रि में ये पलामू के जंगल हैं, जहां घना अंधेरा है, डर है, सन्नाटा है, जहां ना सूरज की रोशनी धरती तक आती है और ना ही चंद्रमा की शीतलता. जंगल अपने नग्न रूप में जितना क्रूर और भयावह है, उतना ही सुंदर और सुकूनदायक भी है. पलामू. आजाद भारत में कभी बिहार राज्य का अंग रहा पलामू आज झारखंड राज्य का हिस्सा है. इसके अतीत में झांकें तो इसकी समृद्धि की निशानियां मिल जाएंगी, मगर आज नए जमाने की तरक्की के निशान ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं. भूख, अकाल,
गरीबी, बंधुआ मजदूरी और नक्सलवाद की पहचान बनता रहा है पलामू। इसकी गिनती देश के सबसे पिछड़े जिलों में होने लगी है। लेकिन क्या पलामू हमेशा से ऐसा था? Well, when I was very young, I went to Palamau, especially at the Betla forest area with my family. That was in the 60s. And later on, I made a documentary on bonded labor. So Palamau is one of my locations. I found it fascinating, its forest. And I remember it was spring. It was full of colors. The shimul and polash were in bloom. And of course, people were so simple. There were many indigenous group, they lived there when I found them. So it was quite interesting trip for me. Well, you see, Palamu, as well as the entire Chotanagpur Plateau, including the Deccan Plateau, was called Dandakaranya in Ramayana, as you know, the reference to Dandakaranya forest, because that's where Ram and Lakshmana and Sita were banished to for 14 years. So that particular area has always been main peninsula of India. You will find that is where the largest number of tribes live. I got the Palamu. There is a purity of the atmosphere, purity of the persons who are living there. They are very much simple. I heard the Palamu when I was offered by Ray to go to Palamu. Then I was very much thrilled to go there. Not only for the city, but for the place. The Palamu, I want to see that jungle I was to capture. I used to take the photographs. There are so many animals also I find at the time of they're going to spot and after coming back to the Chipadot. प्रकृति ने पलामू को अपने सबसे सुंदर गहनों से सजाया है। मगर झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 160 किलोमीटर दूर होने और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद विकास यहाँ कछुआ चाल से पहुंच रहा है। पलामू के प्राकृतिक सौंदर्य और दुर्भाग्य दोनों की ही गवाही हमें सबसे पहले बांग्ला के महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बड़े भाई संजीव चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखे पलामू नामक यात्रा वृत्तांत में मिलती है, जो यहाँ पर 1855-56 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए थे। उनकी किताब में प्रकृति का सौंदर्य और उस वक्त का जीवन दर्ज है। Of course, British served at Palamau. They made District Gazetteer. But Palamau, written by Sanjeev Chandra, was the first book in Bengali about that region. And the book became very popular. And a lot of people in their writings, they used to quote from these books because the book is not only a description on Palamau, but also quite philosophical about the life in the forest and seen by people from the city. 150 साल हो रहे हैं ये किताब बंगाल में अब भी पढ़ी जाती है। बंगाल के साहित्यिक इतिहास में इस किताब का बड़ा महत्व है। वर्ष 2000 में भारत के नक्शे पर उभरे झारखंड राज्य से कहीं पहले पलामू जिले के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। पलामू सन 1967 में एकाएक विश्व के मानचित्र पर चिन्हित हुआ, लेकिन किसी अच्छी बात के लिए नहीं, बल्कि भीषण अकाल के कारण। असल में सूखा पलामू की नियति है। लेकिन एक मामले में पलामू जरूर सौभाग्यशाली है कि इसे रचनाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर अपनी कर्मभूमि बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर कभी यहाँ कोलियरी के मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। महाश्वेता देवी जैसी साहित्यकार ने पलामू के बंधुआ मजदूरों के दुख दर्द, दमन और दशा पर रचनाएं लिखी। वे यहाँ पर बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के आंदोलनों से जुड़ी रहीं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने भी अपना बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में यहीं से प्रेरित होकर प्रारंभ किया था। पलामू साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ
फिल्मकारों को भी प्रिय रहा है। एक समय पलामू को बांग्ला फिल्मों की ऊटी कहा जाता था। पलामू के अंदर सिनेमा की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत पहले बंगाली फिल्मकार आए, सत्यजीत राय, तपन सिन्हा जैसे लोग आकर के पूरी फिल्म बनाए यहाँ पर। अरण्य दिन रात्रि सत्यजीत रे जी की फिल्म थी। उससे पहले भी एक यहाँ बेतला के पास पलामू किला बहुत आकर्षण का केंद्र था और वहाँ शूटिंग हुई थी। वो फिल्म थी दस्यु मोहन, बंगला फिल्म थी और प्रदीप कुमार और सुमित्रा देवी उसमें थे। सत्यजीत रे की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि का पलामू के इतिहास में बहुत ही खास स्थान है। अरण्येर दिन रात्रि 4 दोस्तों अशीम, संजॉय, रॉबी और शेखर की कहानी है, जो महानगर कोलकाता की एक रास्ता से ऊबकर नगरीय जीवन से दूर ऐसी जगह को चुनते हैं जहां ना तो बाजार है, ना शोर है, ना तो समाचार पत्र है और ना ही किसी तरह का मीडिया। पलामू में स्थित वन विभाग के एकांत डाक बंगले में दिन और रात बिताते हुए चारों दोस्त पाते हैं कि जंगल के जिन लोगों को वे असभ्य और गंवार समझते हैं, जो जीवन के आनंद से अपरिचित हैं, पर सच्चाई ये है कि वे ही जीवन का असली आनंद ले रहे हैं। हर समाज में एक ऐसा वक्त आता है जब व्यक्ति की निजता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। शहरों और महानगर में जब जब ये खतरा पैदा हुआ है, व्यक्ति या तो अपने अंदर झांकने लगता है या फिर वो प्रकृति से जुड़ाव के लिए बेचैन हो उठता है। आत्मा और प्रकृति ही अंततः इंसान का संबल बनती हैं। अरण्येर दिन रात्रि में 4 दोस्तों की जंगलों की तरफ ये यात्रा भी प्रतीकात्मक है। वे अपने आत्म की तलाश करते हुए अंततः ईश्वर की तलाश करने निकले हैं। ईश्वर जो शांति प्रदान करता है, ये जंगल उन्हें शांति देता है। वास्तव में ये फिल्म इन दोस्तों की निजी कहानी कहते हुए भी समाज पर कई टिप्पणियां करती है। जैसे जब इन दोस्तों को डाक बंगले का केयरटेकर शुरुआत में रहने की इजाजत नहीं देता और पैसे लेने के बाद जब मंजूरी देता है तो अशीम कहता है, Thank God for corruption. सत्यजीत रे इसलिए भी भारतीय सिनेमा में विशिष्ट हैं क्योंकि उन्होंने साहित्यिक कृतियों पर महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं। ये कृतियां उनके लिए सिनेमा बनाने का साधन हैं। उन्होंने साहित्यिक कृतियों पर रची अपनी सभी फिल्मों की स्क्रिप्ट शुरू से अंत तक अपने अंदाज में अकेले लिखी है। वे साहित्यिक कृतियों का इस्तेमाल एक कच्चे माल के रूप में करते रहे हैं। Most of Ray's great films were lifted from novels. That when he was in the process of doing this, he did it in solitary confinement. He would just be locked out from the world. That's why his famous place to go and work and write a script was the Diga Beach. He used to have a small little hotel. He used to go and lock himself in that room. No one knew where he was. No one knew how to get in touch with him. Thank God for the telephones not being there. Because when he came out of that room, he had a complete script in his hand. Same thing with Aranyer Din Ratri. Aranyer Din Ratri was a story written by someone else, but the way he adapted it, that had the Ray stamp. The writer too agrees that he had done a great job. I mean, what he had written and what was translated on the screen was a better job. अरण्येर दिन रात्रि सुनील गंगोपाध्याय के इसी शीर्षक से लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। ये उन्होंने 1960 के दशक में लिखा था। ये उपन्यास आत्मकथात्मक है। अपने समय को जी रहे सुनील गंगोपाध्याय खुद एक ऐसी ही यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ गए थे। ये उपन्यास इसी यात्रा का परिणाम था। कोई भी समाज अपनी विशिष्ट परतों के साथ बना होता है। यहाँ वर्गों की उच्च और निम्न श्रेणियां होती हैं। यहाँ जाति और धर्म होते हैं जिनका आधार किसी न किसी प्रकार के भेद पर टिका होता है। गंगोपाध्याय के उपन्यास के चारों मित्र इन्हीं भेदों के विरुद्ध एक तरह की खामोश बगावत करते हैं।
वे ऐसी जगह पहुंचने का उत्सव मनाते हैं जहां ये समाज अपने भेदभाव भरे चरित्र के साथ अनुपस्थित है। समाज के बगैर ऐसी जगह सिर्फ जंगल है। सुनील गंगोपाध्याय के उपन्यास और सत्यजीत रे की फिल्म में ये जंगल सबसे पहले चारों युवाओं को उस महानगर से अलग करके एक निजी पहचान देता है। यहाँ चारों अपने अतीत से अलग हो जाते हैं और एक नए माहौल में खुद को पाते हैं। अपने अतीत से उनका विद्रोह इतना है कि वे जिस दुनिया से आए हैं वहां की कोई पहचान अपने साथ नहीं रखते। माणिक दा की फिल्म में शेखर एक अखबार को जलाते हुए नजर आता है। अखबार को जलाते हुए ये कहता है कि सभ्यता के साथ हमारे संबंध अब खत्म होते हैं। आज के समय में भी ये दृश्य बेहद प्रासंगिक है। पल पल आ रही खबरों की ऐसी बाढ़ आज मीडिया में दिखाई पड़ती है कि कई बार हम खुद को सहज ही उससे अलग कर लेते हैं। भयावह खबरों से कभी कभी डर लगता है और कई बार वितृष्णा होने लगती है। साहित्य को कैसे सत्यजीत रे अपनी रचना प्रक्रिया में सिनेमा की जरूरत के मुताबिक ढाल लेते हैं, ये उपन्यास और फिल्म की तुलना करने पर साफ दिखाई देता है। Ray shot the film in Palamau instead of Dalbungar, which was mentioned in Shunil's novel. I think, Dalbungar forest is little planted, planted. And the bungalow surrounding the forest, it's visually not so interesting because, those trees were all planted trees by the forest department. Ray perhaps wanted a more open space near the river and that old bungalow. So I think, that was the major change. And also Ray wanted to shoot some tribal village fair, which is much more, in numbers in Palamau than in Dalbungar. जो फिल्मकार साहित्यिक कृतियों को पर्दे पर उतारना चाहते हैं, उनके लिए ये फिल्म किसी कोर्स बुक की तरह साबित हो सकती है। एक उदाहरण से इसे बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। गंगोपाध्याय के उपन्यास में जब चारों दोस्त कोलकाता की हर निशानी से अपना पीछा छुड़ाते हैं, तब एक जगह पर रॉबी का सुझाव होता है कि क्यों ना हम ताश खेलें। तब अशीम ये कहते हुए इसे सिरे से खारिज करता है कि जंगल में ताश, क्या हम यही खेलने के लिए जंगल में आए हैं? माणिक दा ने इन्हीं ताश को इस्तेमाल करते हुए एक यादगार दृश्य बुना है। अरण्येर दिन रात्रि में उपन्यास की मुख्य कथा से छूट लेते हुए रे ने चारों दोस्तों और उनकी दो महिला मित्रों शर्मिला टैगोर और कावेरी बोस के बीच एक मेमोरी गेम को बुना है। ये रे की रचनात्मकता का कमाल है कि ये लंबा दृश्य इनमें मौजूद सभी 6 किरदारों की मानसिक स्थिति, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनके आपसी संबंधों को खोलकर सामने रख देता है। जो बात एक उपन्यासकार के लिए बेकार की साबित हो रही थी, एक फिल्मकार के लिए बहुत काम की साबित हुई। एक अच्छा फिल्मकार अपनी रचना में इसी तरह से प्राण फूंकता है। ऐसा नहीं था कि सुनील गंगोपाध्याय का उपन्यास माणिक दा के लिए कोई आसान चुनौती था। इसमें कई ऐसी बातें थी जो उन्हें छोड़नी पड़ी। उपन्यास में एक अहम पड़ाव है जहां पर चारों दोस्त जंगल से इतने एकमेक हो जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े तक बाधा मालूम पड़ते हैं और वे रात को जंगल में घूमते हुए इन्हें उतार फेंकते हैं। असल में ये सभ्यता की बची हुई निशानियों से एक किस्म की बगावत भी है। उपन्यास और फिल्म दोनों में अगर चारों दोस्तों के बहाने सभ्यता पर कई टिप्पणियां हैं, तो खुद इन चारों के चरित्र को लेकर एक व्यंग की धार भी दिखती है। ये भले ही कोलकाता से दूर चले आए हैं, लेकिन गांव और जंगल में रहने वालों के प्रति इनका साहबी ढंग खूब उभर कर आता है। डाक बंगले के चौकीदार से चारों दोस्तों का बर्ताव और रॉबी का लौका नाम के उस गरीब युवक को पीटना जो उसका सामान ढोता है। चारों में से हरी लौका पर अपना वॉलेट चुराने का आरोप लगाता है और उसे पीटता है, लेकिन फिर पता चलता है कि हरी वॉलेट को कहीं और रखकर भूल गया था। चारों दोस्तों के व्यवहार में ये जानकर भी कोई बदलाव नहीं दिखता कि चौकीदार की बीवी बीमार है,
उसे काम में देरी होने या अन्य बातों को लेकर वे लोग उसे फटकारते हैं। कुछ अन्य दृश्यों में चारों दोस्तों की आंखों में महुआ पीने वाली आदिवासी युवती दूली को लेकर हवस साफ दिखती है। ग्रामीणों और आदिवासियों के प्रति इस तरह के व्यवहार से उन्हें कोई नहीं रोक पाता। अंत में लव का अपनी पिटाई का बदला लेता है। लेकिन रॉबी ने दूली का जो फायदा उठाया उसका क्या? असल में यही विमर्श का बिंदु है कि क्या सभ्यताओं का ये विभाजन कभी खत्म नहीं हो सकता? संभवतः कटु सत्य यही है कि हाँ, शहर की सभ्यता और जंगल के आदिवासियों के जीवन में इतनी दूरी बढ़ चुकी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। 20वीं सदी का ये एक बड़ा सभ्यता संघर्ष है। शहरी सभ्यता के स्वार्थों के बीच जंगल का जीवन कैसे बचेगा? इस सवाल का जवाब सबके लिए चुनौती है। अंततः चारों दोस्त वापस कोलकाता लौट जाते हैं। ये साफ नहीं हो पाता कि क्या वे अपने साथ वो शांति लेकर गए जिसकी तलाश में वे महानगर से आए थे। क्या उनके भीतर कुछ बदला? असल में कई बार सवाल ही अपने आप में नई और सकारात्मक शुरुआत का बिंदु होते हैं। अरण्येर दिन रात्रि आपको ऐसी ही एक शुरुआत के मुहाने पर छोड़कर जाती है। See, when it comes to Satyajit Ray's film Aranyar Din Ratri, one of the interesting parts of it is he shot the film there in Palamu and around Palamu. It's a very interestingly made film, and you got to see in many ways this beautiful countryside that is around Palamu, which is in present day Jharkhand. रे पलामू की खूबसूरती से वाकिफ थे। 19वीं सदी के आखिरी दिनों में लिखी संजीव चट्टोपाध्याय की पुस्तक पलामू वो पढ़ चुके थे। इस किताब में दर्ज पलामू के प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन ने रे को वहां पर फिल्म शूट करने के आइडिया पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुनील गंगोपाध्याय के उपन्यास में बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे 4 बेरोजगार युवा मित्र जहां असमंजस में थे कि उन्हें कहां जाना चाहिए, वहीं रे की फिल्म में चारों मध्यम वर्गीय दोस्त अपनी मंजिल आंखों में लेकर सफर पर निकले हैं। अपनी कार को ड्राइव कर रहे अशीम पलामू की राह पर हैं। ये आरंभिक दृश्य में ही स्पष्ट हो जाता है। कार की पिछली सीट पर बैठे संजय के हाथों में किताब है पलामू। संजय इस किताब को जोर जोर से पढ़ते हुए इसकी कुछ खास बातें अपने दोस्तों को बताता है। वैसे उसका फोकस इस इलाके में रहने वाली संथाल महिलाओं के आकर्षण पर अधिक होता है। जब संथाल महिलाओं की बात चली है तो यहाँ इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि अरण्येर दिन रात्रि मूल रूप से 4 दोस्तों यानी फिल्म के पुरुष पात्रों की कहानी लगती है, लेकिन इस फिल्म में 4 महिला किरदार भी हैं और रे ने उन्हें कम स्पेस में भी बेहद खूबसूरती से उभारा है। कहानी में वे चारों अपना असर छोड़ती हैं। रे के सिनेमा के विशेषज्ञ इस बात पर एक राय हैं कि उनके यहाँ महिलाएं अपनी संवेदना और नैतिकता के मामले में हमेशा पुरुषों से 20 होती हैं और नायिकाओं के सामने कई बार नायक बचकाने और हास्यास्पद लगते हैं। फिल्म में शर्मिला टैगोर, कावेरी बोस, सिमी ग्रेवाल और अपर्णा सेन सामने आने वाली परिस्थितियों में इन नायकों पर भारी पड़ती हैं। हालांकि कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या रे ने इस फिल्म में महिला पात्रों का इस्तेमाल फिल्म को पूरी तरह से नीरस होने से बचाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इन नायिकाओं के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की राजनीति और संस्कृति को भी फिल्म में उकेरा है। साथ ही पलामू के प्राकृतिक सौंदर्य को दूसरे हिस्से में नायकों और नायिकाओं की मौजूदगी में ज्यादा खूबसूरती से उकेरा है। फिल्म की पूरी यूनिट पलामू के छीपा दोहर में ठहरी थी।
छिपा दोहर तब विश्वास कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसके मालिक थे R.K. विश्वास। उनका दूसरा नाम मोहन विश्वास था। वो बांस और टिम्बर के बहुत बड़े व्यवसायी थे। वो अरण्येर दिन रात्रि की टीम के लिए रॉयल होस्ट साबित हुए। बंगाल से कई लोग आते थे उनके यहाँ, कंपनी भी बंगाल में थी, लाइजनिंग की वजह से भी कई ऑफिसर उनके यहाँ आते थे और फैमिलीज भी आती थी और वो उनको घुमाते थे। As I remember that day, the 2nd May is Manik Das' birthday. In 2nd May, we are shooting in Palamau in Chipadhorji. On 1st May, all other actors and members. So we are thinking how to celebrate Manik Das' birthday. It is very difficult at that time in 69 and this remote place, so nothing can do. So somehow Mohan Vishwas knew that the 2nd May is Manik Das' birthday and he told us, so you don't bother, you go for shooting, I will arrange everything. So we went to, when we came back in the evening, we saw this totally, that Chipador bungalow is totally different type, like a 5-star hotel like that. And also he brought cook from Daltonganj and arranged very good food for us. Also he arranged Santal dance. So we enjoyed it, and I think this is a different type of birthday we celebrated Manik Das in 2nd May. लेकिन आज ना विश्वास जी हैं और ना ही उस वक्त की तरह हर तरफ फैला उनका व्यवसाय। छिपा दोहर का रूप भी वक्त के साथ बदल चुका है। वन विभाग के इस बंगले को केचकी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कहते हैं। इसे ये फक्र हासिल है कि इसमें विश्व सिनेमा के ग्रेट मास्टर सत्यजीत रे ने लगभग पूरी फिल्म की शूटिंग की। लेकिन आज केचकी बंगले और उसके आसपास शूटिंग के गवाह रहे लोकेशन को देखकर आपको गर्व का नहीं, दुख का एहसास होगा कि हम अपनी धरोहरों की कैसी उपेक्षा करते हैं। वास्तव में बंगले और उसकी खूबसूरती ने ही रे को यहां फिल्म शूट करने के लिए प्रेरित किया था। केचकी बंगला 2 नदियों औरंगा और कोयल के संगम स्थल के नजदीक बनाया गया है। इसी कोयल की गोद में कभी खिलखिलाने वाला केचकी बंगला आज उदास खड़ा है। फिल्म में दिखने वाले चर्चित मेले का दृश्य बंगले के ठीक सामने कोयल नदी की रेत पर सेट लगाकर फिल्माया गया था। वन विभाग को न जाने क्या सूझी कि इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी करके इसे कोयल की गोद से जुदा कर दिया। उस समय बंगले के सामने कोयल और औरंगा नदी का संगम दृश्य साफ दिखता था, मगर आज उस जगह पर करीब 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा चुकी है, जिससे ना तो बंगले से नदी का कोई दृश्य नजर आता है और ना ही नदी किनारे से बंगले का नजारा दिखाई देता है। आज इस बंगले में ना बिजली है ना पानी। रे की फिल्म के एक अहम दृश्य का हिस्सा रहा परिसर में बना कुआं तक ढका जा चुका है। इस कुएं पर आप साफ पढ़ सकते हैं कि इसका निर्माण 1956 में किया गया था। आज बियावान में खड़ा केचकी बंगला जीर्णोद्धार के इंतजार में है। हाँ, बंगले के ठीक बगल में कोयल पर एक बड़ा पुल जरूर बनाया गया था, जो अपने निर्माण के 6 महीने के भीतर ही टूट फूट चुका है। अब वो किसी काम का नहीं है। आश्चर्य होता है कि यही वो जगह है जहां सन 1968 की गर्मियों के दिनों में लगभग 2 शेड्यूल में रे ने अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। माणिक दा की यादगार फिल्म की ये लोकेशन अपने हालात पर आंसू बहा रही है। उसे किसी की प्रतीक्षा है जो उसका उद्धार कर सके।
सिर्फ बंगले की ही बात नहीं है, फिल्म की शूटिंग से जुड़ी अन्य जगहों का हाल भी बुरा है। फिल्म में अपर्णा की भूमिका निभाने वाली शर्मिला टैगोर के घर का दृश्य छिपा दोहर में स्थित पालित बंगले में हुआ था। पालित बंगला बीते जमाने के एक सैन्य अधिकारी की विधवा का था, जहां अब कुछ नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। इस जगह पर खरपतवार और पेड़ उगे हैं। कमोबेश यही स्थिति आर के विश्वास के साम्राज्य की भी है। उस साम्राज्य के कुछ भग्नावशेष ही अब छिपा दोहर में मौजूद हैं। फिल्म में जो शराब खाना दिखाया गया है वो भी अब काफी कुछ बदल चुका है। इन सब के साथ जिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रे ने शूटिंग की थी वो भी अब खस्ता हाल है। इसमें संदेह नहीं है कि अपनी फिल्मी धरोहरों को संभालने में हम पहले भी नाकाम थे और अब भी हैं। संभवतः ये इस बात का नतीजा है कि अब भी हम इसे अपनी संस्कृति और समाज का अंग मानने में हिचक रहे हैं, इसे केवल सस्ता मनोरंजन मानते हैं। वास्तव में अंधाधुंध भौतिक विकास की दौड़ में हमने सिर्फ प्रकृति के शोषण को ही केंद्र में रखा है। नतीजा ये कि हम केवल धरोहरों को ही नहीं गंवा रहे हैं, बल्कि प्रकृति के मूल रूप से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके विकास की बात तो दूर है। पलामू इसी बात का एक उदाहरण है। अरण्येय दिन रात्रि के बाद कोई बड़ी फिल्म यहाँ नहीं बनी, जबकि पूरे पलामू प्रमंडल में प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। लेकिन रे के बाद कोई बड़ा फिल्मकार यहाँ नहीं आया। तमाम खूबियों और खूबसूरती के बावजूद पलामू जिला आज उपेक्षित है। प्रशासनिक और राजनीतिक कमजोरियों ने पलामू की पहचान गरीबी, अकाल, भूख और बंधुआ मजदूरी की बना दी है। वैसे पलामू का एक और दर्दनाक चेहरा नक्सलग्रस्त इलाके का है। जमींदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुई हक की लड़ाई आज दिशा भ्रष्ट नजर आती है। By that time, the inhabitants of the forest, they have changed their attitude. They were not so hospitable like, 30 years back. Because, for sudden reasons, there is a flame in the forest. There is a fire in the forest. And slowly, I think we are losing a lot of our national wealth because there are other problems as well. And these political problems, if we do not take into consideration, maybe we will be losing the best forest very soon. लोगों में कुछ आतंक भी है और विशेषकर बेतला नेशनल पार्क से नेतरहाट के रास्ते में लोगों का मानना क्या है, कुछ अपराधियों का गढ़ हो गया है जिसे जो नक्सली का चोला पहन के अपराध करते हैं, डकैतियां करते हैं और कुछ नक्सलवाद भी पनपा है। नक्सल समस्या ने भी पर्यटकों को पलामू से दूर किया है। वैसे इस पर दो राय है कि नक्सल का खतरा वाकई यहाँ कितना असली है। क्या नक्सल के नाम पर पलामू के साथ षड्यंत्र हुआ है? क्या पलामू की स्थितियां बदल सकती हैं? क्या इस प्राकृतिक संपदा को समेटे हुए राजा की रंक जैसी तस्वीर को बदला जा सकता है? आज जबकि देश में सिनेमा नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई करवट बदल रहा है, क्या सत्यजीत रे की निशानियों से संपन्न ये जमीन फिर से पुराने गौरव को हासिल कर सकती है? क्या फिर से कोई सत्यजीत रे यहाँ अरण्येर दिन रात्रि बनाने आ सकता है? पलामू को फिर से एक नए रे का इंतजार है, एक नई किरण का इंतजार, जो इस अरण्य में सूर्य की तरह चमक बिखेर कर बरसों से छाई रात्रि को दिन में बदल दे।